Basically, as per the Pakistan's Code of Corporate Governance, the Code of Corporate Governance regulation basically requires that there should be two types of reporting on the risk management. One is audit committee's report on the risk management, and then the board's statement on the internal control. As far as the audit committee's report is concerned, it comprises of the following thing. Number one, it lists down the significant risks, how they are being identified, assessed and managed. वो हम लोगों ने पहले बात की थी ना कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, अच्छा इसमें एक चीज बल्कि सॉरी एक इसमें से जो बीच में से ये चीज है जो है ना उसमें ये जो पॉइंट था ये आप लोगों को वो कहा था कि उसे कीजिएगा इस रिस्क मैनेजमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू की जितनी हम ये बात कर रहे थे रिस्क मैनेजमेंट से does it has any link with the corporate governance? Yes, it has link that because the board is responsible for the protection of the company's assets. So if the board is responsible for the management of the or protection of the company's assets, then obviously they are responsible to ensure that the risk management process is properly implemented or taken care of. And as we have already discussed that it's not possible for the board itself that they perform all the functions. So what they can do is, number one, they can make certain committees and those committees can perform these functions for them. And secondly, they can delegate these powers to certain individuals and on behalf of the board, those individuals can perform those functions. So what the board can do is, okay, the board can delegate its authorities to the audit committee and board itself can give the statement of the internal control. So as far as the audit committee is concerned, that audit committee report would list down all the significant risks, how they are being identified, assessed and managed. That process has to be taken care of. वो जो हमने risk profiling की बात की थी ना कि there must be a risk profile that has to be maintained by every business organization. That risk profile basically ensures कि कंपनी ने कौन कौन से रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और उनकी आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं हम स्पेसिफाई करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दोस रिस्क कि कितनी प्रोबेबिलिटी की रिस्क अकर करेगा एंड देन द थर्ड थिंग दैट इज बीइंग एसोसिएटेड इज के व्हाट फाइनेंशियल कॉस्ट वुड बी एसोसिएटेड विद दैट रिस्क और फिर उसकी बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि ये रिस्क जो है ये क्या हमारे लिए बियरेबल है या नहीं है इस रिस्क को हमने रिटेन करना है या इसको हमने क्या कर देना है ट्रांसफर कर देना है तो वो जो रिस्क मैनेजमेंट हमने टेक्निक्स डिस्कस की थी उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं then the audit committee report should also include the report on the effectiveness of the systems put in place to manage these risks, how these risks are basically being managed. Either these risks are transferred through insurance, either we have used certain hedging techniques, means we have gone into the future or forward context, or we have used the option contracts to basically minimize the risk, or we have gone for diversification of the risk by making the portfolios, by making diversified investments, we have reduced the risk. And how effective we have been in controlling these risks. For example, हमने इंश्योरेंस तो करवा ली लेकिन क्या वो रिस्क हमारा जो है ना वो अकर भी हुआ हमें सिर्फ प्रीमियम ही देना पड़ रहा है या उसका कोई बेनिफिट भी हमें मिला या नहीं मिला या अगर इंश्योरेंस कवरेज करवाई भी हुई थी तो उस कवरेज के अगेंस्ट जो हमें कंपनसेशन मिली है बेनिफिट मिली है तो क्या वो हमारे जो एंटिसिपेटेड रिस्क थे उसको कवर कर पा रही है या नहीं कर पा रही जो उसमें list of actions being taken to remedy significant failings or weaknesses. तो जो bottlenecks हैं, जो deviations हैं, जो आपका risk management process नहीं take care कर पाया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए क्या remedial actions आपने लिए जो है ना उसमें आप anticipate कुछ और कर रहे थे actual कुछ और हुआ या उसमें results में कोई deviation आई तो उसको basically आपने कैसे account for करे उसके लिए क्या action जो है ना वो लिया and comment on the need for greater monitoring procedures. अब वो जो मसला मसाइल आया है तो उसको फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए अब आपने क्या सजेस्ट किया है कि हाउ शुड द प्रोसेस शुड बी डिवाइज इन फ्यूचर और द मॉनिटरिंग शुड बी डन सो सच काइंड ऑफ द रिस्क वुड बी अवॉइडेड. जैसे फॉर एग्जांपल फायर इंश्योरेंस आपने नहीं कंपनी की करवाई थी क्योंकि आपको ये था कि हमारा तो कोई ऐसा कंबस्टिबल आइटम ही नहीं है जिससे डील करते हैं या कोई ऐसी जो है कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जिसके वजह से हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं हमने फायर इंश्योरेंस नहीं ली थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या हुआ फायर लगी और वो डिस्ट्रॉय हो गया गोडाउन आपका. तो अब हमें क्या करना है जो ना उसमें कि नेक्स्ट टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि जो सिस्टम शुड बी इन प्लेस कि अगर इन केस शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे लोगों की ऑलरेडी पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए कुछ ड्रिलिंग्स होनी चाहिए कुछ वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स या ऐसे जो है ना वो स्मोक डिटेक्टर्स या फायर अलार्म्स लगा देने चाहिए जिससे एटलीस्ट जो है
इस किस्म की जो चीज़ें हैं, अगर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो भी जाता है तो उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो क्या प्रोसीजर्स ले डाउन किए, क्या मॉनिटरिंग की गई है, दैट हैज़ टू बी टेकन केयर। एंड देन द बोर्ड बेसिकली रिपोर्ट्स, ठीक है, the internal control system. And what the board basically says that essentially it is about the status of the internal controls. There is an ongoing process for identify, evaluating and managing the significant risk that has to be taken care कि वो है भी और incorporate हो रहा है. That the process was there during the year, under that report process exists करता था. It is being regularly reviewed by the board एंड इट इज इन अकॉर्डेंस विद द टर्नबुल गाइडेंस। ये यूके के पर्सपेक्टिव से है कि वहाँ पे वो टर्नबुल एक गाइडेंस है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना की जाती है। ये कैडबरी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अकॉर्डिंगली जो है वो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म को जो है ना स्पेसिफाई किया जाता है। तो बेसिकली वो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैं उसके ऊपर भी बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट होती है कि दीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आर इन प्लेस, और उनको रेगुलरली रिव्यू भी किया जाता है, उसको जो है ना वो मॉनिटर भी किया जाता है, और उस प्रोसेस को जो है ना ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ना डिफरेंट रिस्क वगैरह को किया जाता है। ठीक है, एवेल्युएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एवेल्युएट और मैनेज करते हैं। ये उसके साथ जो है ना रिपोर्टिंग का पर्सपेक्टिव। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू जी। ओके जी, नाउ कमिंग टू दी बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर। जी अमजद साहब। जी सर, यहाँ पे सर एक मैं क्लैरिफिकेशन चाहूँगा। जी जी। वो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं, दे आर देयर टू लुक आफ्टर दी, वो जो रिस्क मैनेजमेंट करके दे आर लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। वो इस अंदाज से मतलब अपेरेंटली तो ये लगता है कि दे आर लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर बाय मैनेजिंग द रिस्क अपने डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज करके। बट ऑन द अदर साइड और हाइंड साइड में दे आर एक्चुअली लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ देयर कंपनी और कॉर्पोरेशन, नॉट द शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स। क्योंकि मतलब ये कि अल्टीमेटली वो कंपनी जो है वो अपने इंटरेस्ट को जो है बेस्ट गार्ड करेगी, इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करेगी, रिस्क को मैनेज करेगी, तो वो मे बी एट द कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर होगा। तो इजंट सो, क्योंकि यहाँ पे एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है और दोनों साइडों पे। नहीं, इफ वी टेक इट द अदर वे राउंड कि बेसिकली बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किसकी हुई है, शेयर होल्डर्स की। तो अगर वो एसेट्स प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट की जा रही है, तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट किसको है, शेयर होल्डर्स को ही है ना। तो अगर कंपनी के कोई एसेट डिस्ट्रॉय होते हैं, कंपनी के अंदर कोई लॉस होता है, तो उस लॉस को अल्टीमेटली बियर किसने करना है, शेयर होल्डर्स ने बियर करना है। तो टेक्निकली स्पीकिंग वो कंपनी के एसेट्स को सेफगार्ड कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे उस एसेट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो किसकी है, शेयर होल्डर्स की है। तो इनडायरेक्टली वो एक्चुअली जो बेनिफिट दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, शेयर होल्डर्स को। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट किसने अर्न करना है, शेयर होल्डर्स ने। लॉस किसने सफर करना है, शेयर होल्डर्स ने। जी कुसैन सर। जी जी प्लीज। अच्छा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हुसैन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही जो है ना। हेलो। जी जी जी, कुछ बेहतर है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि स्टेक होल्डर्स की बात हुई थी, तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह की फॉर्मुलेट भी होती है, जैसे गवर्नमेंट की एक आगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है, सब चीजें हैं। अब उसमें देखा जाए तो डिपार्टमेंट तो एक स्टेक होल्डर है जो पूरी ओन करता है, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, तो स्टेक होल्डर्स तो पब्लिक भी है, बोर्ड उसको कैसे कवर करेगा? ये अगर किसी को क्लियर आवाज सर की आ रही है तो जरा क्वेश्चन अगर रिपीट कर दें। नहीं सर, नहीं आ रही, मेरे ख्याल में बाकियों को भी नहीं आ रही होगी। हुसैन पाशा जी, आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, आप काइंडली अपनी आवाज़ कहीं रीएडजस्ट करें अपनी लोकेशन को। चलें ऐसा करते हैं, थोड़ी देर बाद जो है ना वो क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ आवाज में जो है ना वो डिस्टॉर्शन है। जी सर। ठीक है जी।
ये सेशन बिल्कुल जो है ना वो तकरीबन 5-6-7 मिनट्स रह गए इसको